हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। DRDO ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ DRDO 1 ਜਨਵਰੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੋਰਬੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। L&T ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰਵੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੋਰਟਲ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ। ਉਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੜਾਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਏਮਜ਼ ਰਾਜਕੋਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ। 14 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ISRO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇ ਸਿਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ISRO ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ। ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਘਦੂਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਫਰੈਡੋ ਕੋਵੇਲੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਾਹਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਔਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਐਲਫਰੈਡੋ ਕੋਵੇਲੀ ਦੁਆਰਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਈਨਡ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? 10 ਲੀਨੈਕਸ U2 ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। 10 ਲੀਨੈਕਸ U2 ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡ 4th edition of virtual meeting on joint group on fisheries।
ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਜ਼ੋਂਗ ਸ਼ੈਨਸ਼ਨ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਂਗ ਸ਼ੈਨਸ਼ਨ ਰਿਚੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਦ ਨੈਟ ਵਰਥ ਆਫ $77.8 ਬਿਲੀਅਨ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਟੋਕਾਮੈਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਆਫ ਰੀਚਿੰਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੀ ਨੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸੈਸ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀ ਨੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਯਕਸ਼ਗਨ, ਹੁਤਰੀ, ਸੂਗੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ, ਕਾਰਗਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਔਰ ਲਾਂਬੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਅਰ ਕੋਥੂ, ਦੁਫਮੂਤੂ, ਕਥਕਲੀ ਔਰ ਮੋਹਿਨੀ ਅੱਟਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਥਕਲੀ ਔਰ ਮੋਹਿਨੀ ਅੱਟਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਲਾਵਾ ਔਰ ਕਲਕਲੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਵਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਨੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਨਕਟਾ, ਕੋਲੀ ਔਰ ਲੈਜ਼ੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਨਕਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇਵਰ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ, ਮਟਕੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਔਰ ਗਰੀਦਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਰਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ CEO ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ CEO ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? VK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। VK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CEO ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CEO ਦੀ ਪੋਸਟ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? VK ਯਾਦਵ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਸੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ WHO ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, WHO ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸੇਲ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋਮਾ ਮੰਡਲ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਬਿਕਮ ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ CISF ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CRPF ਹੋ ਗਿਆ, CISF ਹੋ ਗਿਆ, BSF ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ITBP ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CISF ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NSG ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ICG ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
याद रखांगे। तो CISF है जिहड़ा CISF दे सुबोध कुमार जायसवाल नवें चेयरमैन अपॉइंट किए गए, डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं किन्हां दी जगह ते, राजेश रंजन की जगह ते। इस तो इलावा AP माहेश्वरी CRPF दे हैड ने, राकेश अस्थाना बिल्कुल रीसेंटली अपॉइंटमेंट की गई सी इन्हां दी BSF दे विच। इस तो इलावा यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डायरैक्टर ने, एडिशनल डायरैक्टर ने, याद रखांगे। SS देसवाल ITBP के हैड ने, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हालांकि राजेश रंजन की रिटायरमेंट तो बाद CISF का चार्ज SS देसवाल को दिता गया सी, CISF का चार्ज एडिशनल चार्ज दे दिता गया सी SS देसवाल को। हुण फाइनली सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट कर दिता गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सन हैज़ वॉन मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड 2020। सोनू याद होएगा आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया एंथनी फोसी का नाम, डॉक्टर एंथनी फोसी का नाम, मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड 2020 दिता गया। ठीक है, किन्ना ने जीत्या, एंथनी फोसी ने जीत्या। बेसिकली अवार्ड इंडियन परसनस को भी दिता गया। डॉक्टर एंथनी फोसी USA तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा किहड़े इंडियन परसन को दिता गया, तो इन्हां ऑप्शनस दे विचों KK शैलजा को दिता गया। हालांकि इंडियन परसन सिंगल नहीं है, होर भी ने, डिस्कस करते हैं डिटेल दे विच। KK शैलजा कौन ने, केरला दे, सोनू याद होएगा केरला दे हैल्थ मिनिस्टर ने। यूनाइटेड नेशनस द्वारा भी इन्हों सन्मानित किया गया सी इन्हां दे इनिशिएटिव्स दे लई, केरला दे COVID-19 दौरान हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच इन्हां दे इनिशिएटिव्स दे लई, याद रखांगे। इस तो इलावा रघु राम और बूटा सिंह रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। उदय शंकर के रिलेटेड याद रखांगे, ये फिकी दे रीसेंटली फिकी दे हैड अपॉइंट किए गए सी। तो मदर टेरेसा मैमोरियल अवार्ड्स एंथनी फोसी USA दे, फैबियो स्टीवेंजी इटली दे, डॉक्टर प्रदीप कुमार चेन्नई तो बिलोंग करते हैं, इंडियन परसन। संजय पांडे कौन ने, IPS ने, और डायरैक्टर जनरल ने होमगार्ड महाराष्ट्र दे, डायरैक्टर जनरल होमगार्ड महाराष्ट्र दे ने। विकास खन्ना रिलेटेड भी आप रिसेंटली डिस्कस किया सी, विकास खन्ना शेफ ने। KK शैलजा केरला दे हैल्थ मिनिस्टर ने, इन्हों यह अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ लेने कि जिस तरीके नाल केरला दे हैल्थ मिनिस्टर KK शैलजा नूं रिसेंटली यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑनर दिता गया सी, उसी तरीके नाल विकास खन्ना नूं भी एक रीसेंट दे विच अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स दे विच अवार्ड का नाम दसने। नेक्स्ट है डॉक्टर रघु राम नूं ऑनर किया गया OBE। बेसिकली OBE की फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। OBE की फुल फॉर्म बेसिकली ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है कि अवार्ड है ब्रिटेन का सैकेंड हाईएस्ट ऑनर है ब्रिटिश एम्पायर का। क्वीन एलिजाबैथ द्वारा इन्हों इस ऑनर के नाल सन्मानित किया गया, डॉक्टर रघु राम। ठीक है जी, बूटा सिंह एक ऑबिचुरी डिस्कस कर लेने। तो सीनियर राजस्थान कांग्रेस लीडर और फॉर्मर MP फ्रॉम जलौर, बूटा सिंह, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। नेक्स्ट है लियोन मैंडोनका कौन ने, लियोन मैंडोनका किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, चैस तो बिलोंग करते हैं। लियोन मैंडोनका चैस प्लेयर, यह रिसेंटली इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने ने, चैस ग्रैंड मास्टर। किन्नवें चैस ग्रैंड मास्टर बने ने इंपोर्टेंट रहेगा, तो 67th चैस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, इन्होंने की जीत्या, वेरगानी कप जीत्या इटली दे विच, जिस नाल यह 67th चैस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कित्थों बिलोंग करते हैं, गोवा तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर जॉन फैल्टन पास्ड अवे रिसेंटली। बेसिकली अज मंडे है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ने, इस करके आप ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे, वरना आप इन्हों के अर्जुन अवार्ड डिस्कस कर सकते सी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नाइटहुड इन द UK न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट। UK न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट यूनाइटेड किंगडम द्वारा नवे साल के ऑनर्स लिस्ट जारी की गई। नाइटहुड अवार्ड कह सकते हैं, नाइटहुड अवार्ड काफ़ी इंपोर्टेंट अवार्ड है। किन्ना ने जीते, लुइस हैमिल्टन ने।
लुइस हैमिल्टन, इन्हों बेसिकली ये अवार्ड इस करके दिता गया क्योंकि रीसेंटली इन्हों द्वारा माइकल शोमाकर का रिकॉर्ड बराबर किया गया, ब्रोक किया गया। 7 वर्ल्ड चैंपीयनशिप जित गए लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 कार ड्राइवर ने, मर्सिडीज दे लिए ड्राइव करते हैं और यूके तो ही बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इस टाइटल दे विच याद रखांगे कि किहड़े इंडियन परसन नूं यह टाइटल दिता जा चुका है, यूके द्वारा किहड़े इंडियन परसन नूं यह टाइटल दिता गया सी, तो रविंद्रनाथ टैगोर नूं, रविंद्रनाथ टैगोर इन्हां नूं भी यह टाइटल दिता जा चुका है। इस दे विच बेसिकली नाइटहुड अवार्ड दिता जाता है तो नाम के अगे सर लगना शुरू हो जाता है, ये याद रखांगे। नेक्स्ट है विच वैक्सीन बिकम्स फर्स्ट टू गैट अप्रूवल इन इंडिया बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया की जी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस द्वारा की किया गया, एक वैक्सीन नूं अप्रूवल दी गई है। तो किहड़ी वैक्सीन, तो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड के नाल मिलकर इसनूं बनाया गया, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के नाल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नूं अप्रूवल दी गई है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा। ठीक है जी। इस तो इलावा ये भी याद रखांगे कि कोवाशील्ड नूं भी अप्रूवल दी गई है। कोवाशील्ड जी वैक्सीन है इसनूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया सी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इस वैक्सीन नूं डेवलप किया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्रोस रेवेन्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। वैसे इस तरीके की न्यूज़ आप नहीं कवर करते होंगे क्योंकि घट इंपोर्टेंट रहिंदियां ने, पर यह न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि GST दे बेसिकली हर महीने कह सकते हैं कि कलैक्शन की जाती है, तो जिसकी महीने के एंड के रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ठीक है। तो हुण दिसंबर 2020 ज़्यादा इंपोर्टेंट रहा है क्योंकि पहली बार इंडिया की जी GST की कलैक्शन है मंथ की वो इन्नी रही है, यानी कि 1.15 लाख करोड़ नूं क्रॉस किया है। 1.15 लाख करोड़ GST कलैक्शन नूं क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम। तो कितनी रही 1.15 लाख करोड़, यानी कि 1,15,174 करोड़। नेक्स्ट है विद विच बैंक इंडिया हैज़ साइंड अ USD 231 मिलियन लोन, $231 मिलियन का लोन साइन किया गया किहड़े बैंक के नाल, किस दे लई, ताकि 120 मैगावाट का एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट बनाया जा सके। किहड़े बैंक के नाल, ADB दे नाल। ADB दे नाल इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया। थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेने आ। बाकी ऑप्शनस दे अगर स्टैटिक फैक्ट्स तुसीं डिस्कस करना चाहते हो तुसीं रिवाइज कर सकते हो, आप डिस्कस किए हुए ने काफ़ी बार। ADB रिलेटेड डिस्कस कर लेने। ADB रिलेटेड पहले डिस्कस कर लेने कि 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। मसात्सुगु आसाकावा जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं, इसके हैड ने। मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच इसका हैडकुआटर है। और अशोक लवासा का नाम याद रखांगे जिहड़े कि इसके वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए। इंडिया ने ADB के नाल 2 एग्रीमेंट साइन किए, इंपोर्टेंट रहेंगे। सब तो पहले 231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किस दे लई, इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नूं इंक्रीज़ करने के लिए असम दे विच ताकि किस दे नाल कीती जाएगी ये कैपेसिटी इंक्रीज़, 120 मैगावाट का हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसी दे नाल इंडिया ने ADB के नाल 10 मिलियन का लोन अलग साइन किया जिस दे लई हॉर्टिकल्चर नूं एक्सपेंड किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर नूं एक्सपेंड किया जाएगा हिमाचल प्रदेश दे विच। नेक्स्ट है हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इन 6 सिटीज़ एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव। ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी, पूरी डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव बेसिकली तो आप डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के बारे डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि इस
लोगों को घर होम प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी का ही एक डिफरेंट इनिशिएटिव है कि ग्लोबल हाउसिंग टैक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव। इस दे अंडर लोगों को जल्दी घर प्रोवाइड करवाने लिए और एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट वे दे नाल प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि सस्टेनेबल होंगे। इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट ने क्योंकि हाउस सस्टेनेबल तरीके नाल बनाए गए ने और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी सस्टेनेबल होंगे, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होएगा। इस तो इलावा इस दे विच सोलर पैनल लगे होंगे और ग्रीनरी नूं काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव दिता जाएगा। इन्हां हाउसिस दे फाउंडेशन स्टोन रखे है 6 सिटीज़ दे विच, 6 सिटीज़ दे विच। सिटीज़ भी डिस्कस करांगे किन्ना द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इस तो इलावा हरदीप सिंह पुरी का याद रखांगे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, प्लस सिविल एविएशन मिनिस्टर ने राज्य सभा MP ने यूपी तो। ठीक है जी, हुण हल्का जिहा इस न्यूज़ के बारे डिस्कस कर लेने आ। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन रखिया 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का 6 सिटीज़ दे विच। केड़ी 6 सिटीज़? सब तो पहले एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू बिल्ड अराउंड 1000 हाउसिस, 1000 घर बनाने ने इसका इनिशिएटिव है। कित्थे? इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ यूपी दे विच। ठीक है, क्वेश्चन इस जिस तरीके नाल मैं क्वेश्चन पूछा उस तरीके नाल ना पूछ के क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि 5 ऑप्शंस दे के कहा जाएगा कि केड़ी सिटी उसका पार्ट नहीं है, ग्लोबल हाउसिंग टैक्नोलॉजी चैलेंज इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन दे विच अहमदाबाद आ गया, ऑप्शन दे विच मुंबई आ गया, तो याद रखेंगे केड़ी 6 सिटीज़ ने। नाम इंपोर्टेंट रहेंगे इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। ठीक है, इस तो इलावा जी कंस्ट्रक्शन बनाने का तरीका है वो केड़ी कंट्रीज से चूज किया गया है? फ्रांस, जर्मनी और कैनेडा। फ्रांस, जर्मनी और कैनेडा। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया IIM संबलपुर का। IIM रिसेंटली अपने राजकोट रिलेटेड डिस्कस किया। ठीक है जी, इस तो इलावा IIM संबलपुर भी याद रखांगे। एम्स राजकोट डिस्कस किया, दरभंगा बिहार दे विच भी एम्स डिस्कस किया। हुण IIM संबलपुर उड़ीसा दे विच। नेक्स्ट है विच 2-wheeler कंपनी हैज़ बिकम फर्स्ट टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। बेसिकली वर्ल्ड की पहली ऐसी 2-wheeler कंपनी जी 2 व्हीलर व्हीकल बनाती है, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल्स हो गया। इस तो इलावा 3 व्हीलर भी बनाती है ये ऑटोज़ वगैरह, तो इसका नाम है बजाज ऑटोज़। बजाज कंपनी है जी ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन चुकी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है। वर्ल्ड की पहली 2-wheeler कंपनी बनी है। ठीक है जी, इस तो इलावा होर भी काफ़ी कंपनीज़ ने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं रिलायंस की आप डिस्कस किया सीगा। इस तो इलावा TCS बारे भी डिस्कस किया हुआ है। इंडिया की ऐसी कंपनीज़ ने जिन्हों की मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। इस तो इलावा ये फैक्ट याद रखेंगे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट 2-wheeler कंपनी है और फर्स्ट लार्जेस्ट 3-wheeler मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच फोर्स ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ न्यू ह्यूमन राइट्स सेल फॉर ग्रेट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबेबिलिटी इन इट्स फंक्शनिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज दे विच ट्रांसपेरेंसी कंडक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स सेल, ह्यूमन राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स सेल बनाया गया है। किन्ना द्वारा? तो इंडियन आर्मी द्वारा इसनों बनाया गया। ठीक है जी, बेसिकली जो आर्मी हैडकुआर्टर्स है न्यू दिल्ली के उत्थे इस सैल को कंडक्ट किया गया है, या कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट कंडक्ट किया गया आर्मी द्वारा। ठीक है जी, तो डिपार्टमेंट कंडक्ट किया गया तो कोई परसन उसको हैड भी करेगा, तो हैड का नाम डिस्कस कर लें। इस तो इलावा एयरफोर्स रिलेटेड न्यूज़ है वह भी डिस्कस करांगे। तो इंडियन आर्मी द्वारा इसनों कंडक्ट किया गया। डिस्टर्ब्ड एरियाज दे विच आपां डिस्कस किया सी नागालैंड नूं रिसेंटली डिस्टर्ब्ड एरिया डिकलेयर किया गया। वैसे अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे इलाके ने इंडिया के जिथे हमेशा डिस्टर्बेंस रहिंदी है। इसके हैड कौन अपॉइंट किए गए ने? मेजर जनरल गौतम चौहान।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੌਤਮ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाल 12 फास्ट पैट्रोल बोट्स के लिए कि फास्ट पैट्रोल बोट्स बना के दित्तियां जाणगियां इंडियन आर्मी नूं किन्हां द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इंडियन एयरफोर्स की गल करते हैं तो एयरफोर्स के चीफ कौन ने? RK सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया एयरफोर्स के चीफ ने। इन्हां द्वारा इंडियन एयरफोर्स ई-गवर्नेंस पोर्टल, इंडियन एयरफोर्स ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली दे विच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहेगी और इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप डिस्कस करते हैं। एक नवा इंडेक्स बनाया गया कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, या शॉर्ट फॉर्म के डायरैक्टली इसनूं DPI कहा जा रहा है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया के विच कितनी इंक्रीज़ हुई ने हर साल की अगर आप गल करते हैं, ठीक है। हालांकि पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं इसके बारे। इसनूं RBI द्वारा, इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसनूं बनाया गया, ठीक है जी। अच्छा, RBI रिलेटेड आप रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कीतियां ने। एक न्यूज़ हर एक ने कमेंट बॉक्स में दसनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं RBI के ट्विटर कैंपेन हो गया, ठीक है। RBI ट्विटर के उत्ते 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। इस तरीके की जिन्नी भी न्यूज़ आप RBI रिलेटेड डिस्कस कीतियां ने, एक न्यूज़, ठीक है, दसनिया ने। इस तो इलावा NPCI रिलेटेड एक न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के हैड का नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना है, ठीक है। दोनों के हैड कौन ने? सब तो पहले RBI गल करते हैं तो RBI ने की किया? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स शुरू किया, ठीक है। इसके अंडर 5 डिफरेंट पैरामीटर्स ने, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, इस तो इलावा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, 2 डिफरेंट पैरामीटर्स। इस तो इलावा पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये 5 पैरामीटर्स ने। इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इत्थों किस इंडेक्स दे विच बेस ईयर केड़ा चूज किया गया है? मार्च 2018 नूं बेस ईयर चूज करके उसका स्कोर रखा गया 100, तो उसके अकॉर्डिंग 2019 दे विच स्कोर रहा 153.47, इंपॉर्टेंट रहेगा स्कोर। और मार्च 2020 दे विच स्कोर रहा 207.84, ठीक है जी। इस तो इलावा यह भी अनाउंस किया गया कि इसनूं 4 महीनों के गैप के नाल पब्लिश किया जाएगा मार्च 2021 तो, ठीक है। कि इसनूं फाइनली मार्च का जिहड़ा इंडेक्स आएगा उस तो बाद इसनूं 4 महीनों तो बाद हर 4 महीने बाद इसनूं रीपब्लिश किया जाएगा। NPCI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है कि ट्रांजैक्शन चार्जिज खत्म कर दिए गए हैं UPI पेमेंट्स तो। क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जाएगा? क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि ट्रांजैक्शन चार्जिज किसने खत्म किए हैं या किस उत्तों खत्म किए हैं। क्वेश्चन NPCI की फुल फॉर्म नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का हैडकुआटर मुंबई दे विच। NPCI कदों बनाया गया? 2008 दे विच। NPCI के हैड कौन ने? तो दिलीप आसबे, ठीक है जी। इस तो इलावा UPI की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड चेंजिज इन इट्स नैशनल एंथम। नैशनल एंथम दे विच चेंजिज किहड़ी कंट्री ने अनाउंस किए ने? किहड़ी कंट्री द्वारा अनाउंस किए गए हैं? तो किहड़ी कंट्री द्वारा अनाउंस किए गए हैं नैशनल एंथम दे विच चेंजिज? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का नैशनल एंथम है जिहड़ा जिस तरीके नाल इंडिया का नैशनल एंथम जनगण मन जिसनूं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया सी, ठीक है जी। उसी तरीके नाल ऑस्ट्रेलिया का नैशनल एंथम किन्ना द्वारा बनाया गया, ठीक है। कदों तो इसनूं अडॉप्ट किया गया?
ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तो इलावा जो चेंज किया गया वो किस वर्ड में चेंज किया गया, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा। तो तीनों रिलेटेड डिस्कस कर लेने। इस तो इलावा कंट्रीज रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक लाइन सी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। इस लाइन दे विच सिंपली फॉर वी आर वन एंड फ्री यानी कि यंग वर्ड नू वन दे नाल रिप्लेस किया गया, एक स्लाइटली चेंज किया गया है किस दे लई, कंट्री नू यूनाइटेड कहण दे लई इन इट्स नैशनल एंथम। इस नैशनल एंथम नू किन्ना द्वारा लिखिया गया सी, तो पीटर डॉर्ज मैकॉर्डमिक, पीटर डॉर्ज मैककॉर्डमिक इन्हां द्वारा इसनूं लिखिया गया सी और अडॉप्ट किया गया सी 1984 दे विच, 1984 दे विच इसनूं अडॉप्ट किया गया सी। नेक्स्ट है इंडिया, इंडिया रिलेटेड न्यूज़ सी, आपां ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया नूं यूनाइटेड नेशनस सिक्योरिटी काउंसल, यूनाइटेड नेशनस दी सिक्योरिटी काउंसल दे विच नॉन परमानेंट मैंबर इलैक्ट किया गया सी। टर्म इंडिया की शुरू हो रही है 1 जनवरी 2021 तो 2 साल के लिए इलैक्ट किया गया, ठीक है। इंडिया 8वीं बार इलैक्ट किया गया इस काउंसल दे विच। और यह फैक्ट आप पहले नहीं डिस्कस किया होया कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसल का प्रेजिडेंट बनेगा अगस्त 2021 दे विच और 22 दे विच भी बनेगा। बेसिकली इत्थे एक हल्का जिहा डिस्कशन है, डिस्कस करते हैं कि जिहड़ी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसल हुंदी है उसका जिहड़ा प्रेजिडेंट हुंदा है 1 महीने दे डिफरेंट कंट्रीज़ बनदियां ने, ठीक है। ये बेसिकली अल्फाबैटिकली चूज किया जाता है। तो इंडिया 2021 दे विच भी बनेगा 1 महीने के लिए, 2022 दे विच भी बनेगा 1 महीने के लिए, ठीक है। अल्फाबैटिकली इंडिया का जो नाम आएगा तो इंडिया 2021 दे विच कदों बनेगा, अगस्त दे विच बनेगा, ठीक है। और सिमिलरली 2022 दे विच भी बनेगा, उसके बारे आप डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट है जापान, जापान द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि वो किसनों ज्वाइन करना चाहता है 5 आइज़ ग्रुप नूं। 5 आइज़ ग्रुप, 5 आइज़ ग्रुप एक स्पाई ग्रुप है, एक स्पाई ग्रुप है। अगर आप गल करते हैं अगर इस दे विच जापान ज्वाइन होंदा तो जापान पहली नॉन इंग्लिश कंट्री होएगी, नॉन इंग्लिश कंट्री होएगी जिहड़ी इसनूं ज्वाइन करेगी। बेसिकली चाइना नूं काउंटर करन दे लई वो इस दे विच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो किहड़ी कंट्रीज़ इस दियां मैंबर ने, 5 कंट्रीज़ इस दियां मैंबर ने, USA, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। USA, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस दियां मैंबर ने, ठीक है जी, याद रखांगे। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया रिलेटेड अगर आप गल करते हैं तो आप डिस्कस किया कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साउथ कोरिया की विजिट पर गए सी 3 दिनों के लिए। तो उत्थे इन्हों एक अवार्ड दिता गया गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड साउथ कोरिया द्वारा किन्हों दिता गया, इंडिया के आर्मी चीफ नूं, ठीक है जी। इस तो इलावा ये याद रखांगे कि साउथ कोरिया द्वारा ही सियोल पीस प्राइज़ भी दिता जाता है। सियोल पीस प्राइज़ इंडिया नूं भी दिता जा चुका है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नूं, ठीक है जी, याद रखांगे। USA प्रेजिडेंट इलैक्ट जो बिडन, प्रेजिडेंट इलैक्ट जो बिडन द्वारा USA दे विच कैथरीन हिक्स, कैथलीन हिक्स नूं डिप्टी डिफेंस सैक्रटरी नामित किया गया, डिप्टी डिफेंस सैक्रटरी बनाए जाएंगे और ये फर्स्ट वूमेन होंगे ਜਿਹੜੇ इस पोस्ट के उत्ते होंगे। इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ इंडियन ओरीजन ਨੂੰ अपॉइंट किया जा रहा है वो नाम आप डिस्कस करते रहने, इंपोर्टेंट रहने सारे नाम। ये नाम इस करके इंपोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वूमेन होंगे इस पोस्ट के उत्ते, डिप्टी डिफेंस सैक्रटरी की पोस्ट के उत्ते। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ऑपरेशन मुस्कान किहड़ी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के नाल रिलेटेड है। ऑपरेशन मुस्कान अहमदनगर, अहमदनगर कित्थे है, महाराष्ट्र की एक सिटी है, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। बेसिकली एक कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया, किस इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा बाकी सिटीज़ रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा मुस्कान ऑपरेशन लॉन्च किया गया सी मिसिंग चिल्ड्रनस नूं फाइंड आउट करने के लिए कि जिहड़े
ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਕਾਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ 77 ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 77 ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫਾइंड आउट कर ले गए। नैक्सट है मुंबई ਦੇ बेसिकली ਜਿਹੜਾ मुंबई एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कह सकते हैं या मुंबई एयरपोर्ट भी कह लें, तो इन्हों द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फॉर द वर्चुअल टूर ऑफ जया हे जीवे की म्यूजियम। जया हे जीवे के म्यूजियम क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि जया हे जीवे के म्यूजियम किहड़ी सिटी दे विच है, तो यह छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के उत्ते है, मुंबई महाराष्ट्र दे विच है। नैक्सट है पटना रिलेटेड न्यूज़ सी कि वर्ल्ड मैटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच इसदा हैडकुआटर है। इस द्वारा सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन का अवार्ड स्टेटस दिता गया है पटना मैटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी नूं। पटना मैटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी नूं सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन का दर्जा दिता गया। नेक्स्ट है गांधीनगर रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ थी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसिज सेंटर अथॉरिटी IFSCA जिसका हैडकुआटर गांधीनगर गुजरात दे विच है, ये किसका मैंबर बनया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन का मैंबर बनया है, हैडकुआटर मैड्रिड स्पेन दे विच है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन का हैडकुआटर मैड्रिड स्पेन दे विच है। भोपाल यह न्यूज़ रिलेटेड आप कल भी डिस्कशन की सी कि न्यूज़ अपनी स्किप हो गई सी। बेसिकली आप डिस्कस किया तानसेन अवार्ड डिस्कस किया कि तानसेन फैसटिवल MP दे भोपाल दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है, सॉरी MP दे ग्वालियर दे विच हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दे विच तानसेन अवार्ड दिता जाता है, तो किन्हों दिता गया सी, पंडित सतीश व्यास नूं यह अवार्ड दिता गया। इसी फैसटिवल दे विच इसी कह सकते हैं ईवेंट दे विच राजा मान सिंह तोमर अवार्ड भी दिता जाता है। यह अवार्ड किन्हों दिता गया, भोपाल बेस्ड भोपाल की अभिनव कला परिषद नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट इज प्लैनिंग टू बिल्ड मैमोरियल फॉर मार्टियर्स कोविड वॉरियर्स दे लई मैमोरियल बनाने के लिए किहड़ी स्टेट द्वारा प्लैनिंग की जा रही है, तो अपना आंसर है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन्हों द्वारा इस अनाउंसमेंट नूं किया गया कि मैमोरियल बनाया जाएगा उन्होंने लोगों के लिए कोविड-19 के नाल फाइट करते हुए जिन्होंने लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है जी। अगर आप तमिलनाडु रिलेटेड कुछ पुराने फैक्ट डिस्कस करते हैं तो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फैसटिवल याद रखांगे। उड़ीसा दे विच कोणार्क सन टैंपल, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फैसटिवल कोणार्क सन टैंपल कित्थे है, उड़ीसा दे विच है। फैसटिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तो इलावा राज पर्व भी उड़ीसा दे विच, नोखाई फैसटिवल याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं उड़ीसा ने रिसेंटली अगर आप गल करिए उड़ीसा दे विच ईको रीट्रीट प्रोग्राम भी उड़ीसा का, परिश्रम पोर्टल रिसेंटली उड़ीसा का, हॉकी स्टेडियम अनाउंस किया गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा उड़ीसा के रोयकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच, जिथे 2023 की मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, रोयकेला और भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट दे विच। इस तो इलावा यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा के ऑर्गेनाइज किए गए सी। कैरियर पोर्टल रिसेंटली सब तो इंपोर्टेंट रहेगा, रिसेंटली कैरियर पोर्टल लॉन्च किया गया सी यूनीसैफ के नाल मिलके, ठीक है जी। उड़ीसा बारे काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट आप डिस्कस कर लें। इस तो इलावा चलते हैं बाकी इंपोर्टेंट स्टेट्स की न्यूज़ दे वल। चारों स्टेट्स के रिलेटेड एक ना एक न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने इन्हों द्वारा वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है पुणे दे विच।
भामा अक्षद डैम वाटर सप्लाई स्कीम, भामा अक्षद डैम वाटर सप्लाई स्कीम पुणे दे विच लॉन्च की गई है। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है कि भाना अक्षद डैम ये कित्थे है, तो ये भी पुणे दे विच है। तमिलनाडु की एक सिटी है विलोर, वेलोर सिटी है तमिलनाडु की, विलोर डिस्ट्रिक्ट भी है तमिलनाडु का। तो विलोर के पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा एक पार्क लगाया गया, एक फिलैटली पार्क लगाया गया। फिलैटली सुन याद होएगा, आप डिस्कस किया सी फिलैटली की होंगे, स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैंप्स एंड पोस्टल हिस्टरी, फिलैटली कहा जाता है। तो फिलैटली पार्क विलोर पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा तमिलनाडु के विच लगाया गया। असम के चीफ मिनिस्टर कौन ने? सर्बानंद सोनोवाल ने। इन्हों द्वारा रिवर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज सर्विस लॉन्च की गई है डिब्रूगढ़ के विच। ठीक है जी। रिसेंटली ब्रह्मपुत्रा के विच टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए एक तो यह इनिशिएटिव हो गया, एक इस तो पहले एक मैराथन भी लॉन्च की गई सी ब्रह्मपुत्र रिवर के विच ही, वह भी याद रखांगे। वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा इनोग्रेट की गई सी। नैक्सट है उत्तर प्रदेश दे विच यूनीयन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा दे विच की लगाया जाएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब है जिहड़ा यह लगाया जाएगा, कित्थे लगाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा दे विच। ठीक है जी। इस तो इलावा नोएडा रिलेटेड याद रखांगे, रिसेंटली ग्रेटर नोएडा जिहड़ा जेवर एयरपोर्ट सीगा उसका नाम ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट कर दिता गया सीगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया सी। और इसी दे नाल इसका जिहड़ा लोगो सीगा यूपी के स्टेट बर्ड सैरस क्रेन, फ्लाइंग सैरस क्रेन दे ते रिलीज़ किया गया सी, याद रखांगे। आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।